Hello my friends, welcome to Manware Education. In this particular video, we'll talk in detail about the Christ University Bangalore one. Yes guys, it also has campus in Delhi NCR and even in Pune. We can see 4 different campuses in Bangalore alone. We'll talk about the important dates, eligibility criteria, paper pattern. We'll also discuss about the cutoff with respect to the BBA, BCom and BSc program. We'll talk about the selection process criteria, and even guys, you will get all the preparation material at Manware Education about the selection process criteria, because not only entrance test, Christ University focus more on the selection process parameters. We'll talk about the seat intake, even we'll talk about the fee structure and the placement stats. So video को end तक जरूर देखना guys. जो भी आपके doubts है, you can ask me in the below comment section. Before moving further guys, we have launched the batches. You will get all these features, the interactive learning classes, educators writing exam every year, so that you will be familiar with the exam difficulty level. You will solve around 10,000 plus questions in the practice, basic to advanced level learning, access to WhatsApp group for peer learning, timely updates you will get, shortcuts for speed and accuracy, exam level mock test by the topper for the topper strategy we use, and strategy and workshops also. And in case you want a self preparation, you can avail our self study program where you will get video lectures, mock tests, books, sectional course. Even you will get preparation for GD, VAT, PI and the GK booster. So if you are preparing for any particular exam along with Christ University, such as IPMAT and PAT Set General, CUT UG, MSCT for their respective BCA, BBA, BMS and BBM program, then guys you can join Manware Education. So let's start the video. Why Christ? Very first one guys, Christ University established as a Christ College in 1969, and thereafter UGC conferred autonomy to Christ College in 2004. It known as the institution with potential for excellence in 2006, accredited by the NAC in 1998, and it was the first institute in Karnataka. अगर मैं ranking की बात करूँ then guys it stands at 63rd rank according to the NIF India ranking 2025. 30,000 प्लस स्टूडेंट्स हमें देखने मिलेंगे फ्रॉम 58 नेशनलिटीज. होलिस्टिक एजुकेशन यहाँ आपको मिलने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू द एकेडमिक्स, इवन स्पोर्ट्स, इवन द कल्चर. यू कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट. अमेजिंग गाइज, आपको यहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट मिलेगा. 450 प्लस रिक्रूटर्स ऑन कैंपस एवरी ईयर. प्लेसमेंट्स यहाँ 100% होता है गाइज. लास्ट ईयर के जो स्टैट्स है अराउंड 90 to 95% का प्लेसमेंट्स हो चुका है. अमंग द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ फॉर द हायर स्टडीज एज वेल. और यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट है गाइज, इट हैज स्ट्रॉन्ग अलुमनाई नेटवर्क अक्रॉस द ग्लोबल फर्म्स. अगर मैं इनके प्रोग्राम की बात करूँ देन गाइज 82 डिफरेंट बैचलर प्रोग्राम्स, 58 मास्टर प्रोग्राम. सो ओवरऑल यहाँ काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है, चाहे वो एक्रेडिशन की बात हो या रैंकिंग की बात हो. इट ऑल्सो हैज़ द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, NIF रैंकिंग, अमेजिंग, accredited by NBA and even by the NAC. So guys, overall कहूँ तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अपने आप में बेस्ट इंस्टीट्यूट है. एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द BBA प्रोग्राम, आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी. इफ़ यू आर बेसिकली फ्रॉम द बेंगलोर रीजन, फ्रॉम द साउथ रीजन, देन गाइज कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज़ फॉर यू. नेक्स्ट वन आगे बात करते हैं गाइज इंपॉर्टेंट डेट्स. यहाँ आपको एग्जाम देना है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. डोंट कंफ्यूज बिटवीन CUT UG और ये क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अपनी एंट्रेंस एग्जाम खुद कंडक्ट करती है. इनका दिसंबर का स्लॉट ऑलरेडी आउट हो चुका था, वहाँ काफ़ी सारे फॉर्म फिलअप हो चुके थे. नाउ you have time. December 3rd 2025 application form available हो चुके ऑनलाइन. यू कैन विजिट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी वेबसाइट. डेडलाइन जो है गाइज दैट इज 30th March 2026, लास्ट डे ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर एंट्रेंस टेस्ट प्रोग्राम. Thereafter admit card will be released on 4th of April. 6th of April last date of submitting the application online for non entrance test program. काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऐसे भी हैं जिसके लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती, बस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, वहाँ अपने फॉर्म फिलअप करने हैं अकॉर्डिंग टू योर ग्रेड्स एंड ओवरऑल मार्क्स इन 10th and 12th यू विल गेट एडमिशन देयर. सो एंट्रेंस एग्जाम की ज़रूरत वहाँ नहीं है. लेकिन BBA, BCom, BSc प्रोग्राम परस्यू करना है देन गाइज आपको एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही होगा. सो 6th of April एंट्रेंस टेस्ट होगी ऑनलाइन. दे आफ्टर आपके लिए स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन, पर्सनल इंटरव्यू वेन्यू बेस्ड हो जाएंगे. और कहाँ होंगे ये उनके रिस्पेक्टिव कैंपसेस यहाँ शो किए गए, इवन द सिटीज़. सो गाइज ओवरऑल इंपॉर्टेंट डेट्स आपके सामने हैं, बस अब प्रिपरेशन कैसे करना है उस पर हमें फोकस करना है. और मोस्टली भाई क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को टारगेट क्यों करना है. सो गाइज चलो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ के प्रोग्राम के बारे में. सो यहाँ का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो है BBA प्रोग्राम, जिसका स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हो फाइनेंस में, इवन HR, मार्केटिंग. BBA
डिसीजन साइंस एक अलग से प्रोग्राम है जिसकी फीस स्ट्रक्चर भी अलग है, प्लेसमेंट स्टैट्स भी काफ़ी अमेजिंग है। फर्स्ट इंस्टीट्यूट जिन्होंने बीबीए इन फिनटेक ऑफर किया है ऑल ओवर इंडिया। सो भैया आप अगर फिनटेक में जाना चाहते हो, काफ़ी अच्छा स्कोप मिल रहा है यहाँ, आप टारगेट कर सकते हो। इवन फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस, बीकॉम प्रोफेशनल, इंटरनेशनल फाइनेंस, ऑनर्स डिग्री स्ट्रैटेजिक फाइनेंस एंड मोर। 10+ स्पेशलाइजेशन आपको मिलेंगे बीकॉम में। गाइज यहाँ आपको एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 4 इयर्स के प्रोग्राम देखने मिलेंगे सारे, क्योंकि ये आपको प्रोवाइड करेंगे ऑनर्स डिग्री। अगर आप 75% मार्क्स अपने ओवरऑल सेमेस्टर्स में कंटिन्यू करते हो, भाई आप ऑनर्स डिग्री के लिए अवेलेबल हो। यहाँ मल्टीपल एग्जिट प्रोग्राम भी है। जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर हो गया, देन यू विल गेट द सर्टिफिकेट प्रोग्राम। आफ्टर सेकेंड ईयर यू विल गेट डिप्लोमा। जैसे ही आपका थर्ड ईयर हो गया, यू विल गेट बीबीए डिग्री, एंड फोर्थ ईयर कंप्लीट हो जाएगा, देन यू विल गेट द ऑनर्स डिग्री। बीसीए प्रोग्राम, कंप्यूटर एप्लीकेशन फर्स्ट इंस्टीट्यूट जिसने बीसीए प्रोग्राम स्टार्ट किया था इन कर्नाटका, एंड गाइस काफ़ी अच्छा रेपो इसका। बीएससी इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंसेज एंड इवन इन कंप्यूटर साइंसेज। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इनके इकोनॉमिक्स प्रोग्राम को ऑप्ट करते हैं। बीटेक, बीए इन साइकोलॉजी, इंग्लिश, जर्नलिज्म, हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी, बीएलएलबी और बीबीएलएलबी आफ्टर 12th द 5 years प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ, वो आप परस्यू कर सकते हो। इवन बीबीए इन बीएचएम होटल मैनेजमेंट आप चूज कर सकते हो। गाइस प्रोग्राम काफ़ी सारे हैं यहाँ। एज आई सेड 82 प्रोग्राम्स आर देयर विथ रिस्पेक्ट टू द अंडरग्रेड्स। सो गाइस प्रोग्राम्स कौन सा ऑप्ट करना है, बस आपको वो देखना है। स्टैट्स आपको पूरे इस वीडियो में मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। हालांकि बीबीए प्रोग्राम अगर आप परस्यू करना चाहते हो, देन देर इज सिंपल एलिजिबिलिटी, जस्ट यू हैव टू पास 10+2 लेवल। आइदर आप कर्नाटका या किसी भी बोर्ड से हो, कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रीम से हो, यू आर एलिजिबल। कैंडिडेट्स राइटिंग द +2 एग्जामिनेशन इन मार्च में 2026 आर ऑल्सो अप्लाई विद देयर क्लास 10 एंड 11th मार्क्स। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, आपके 10th और 11th के मार्क्स आपको फिल करने हैं, यू आर एलिजिबल। स्टूडेंट्स फ्रॉम इंटरनेशनल करिकुलम वो भी यहाँ एलिजिबल है, बस उनकी रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ देख लेनी है। बीबीए डिसीजन साइंस, यहाँ आपको 60% मार्क्स होने चाहिए 10+2 लेवल में इन साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट, या फिर होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस, एक सब्जेक्ट तो आपके पास होना चाहिए। देन यू आर एलिजिबल फॉर द डिसीजन साइंस। और गाइज यहाँ काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ गाइज, देन पेपर पैटर्न को लेकर बात करते हैं। काफ़ी सिंपल, इन्होंने सारे पेपर पैटर्न्स को मेंशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू ईच पर्टिकुलर प्रोग्राम। अगर आप बीकॉम के लिए जाते हो, बीकॉम इंटरनेशनल अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस, फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी, बीकॉम इन अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन, ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑल दिस लिस्टेड ओवर हियर, एंड इवन बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बीएससी इन अकाउंटेंसी एंड एनालिटिक्स। भाई इंग्लिश 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, फंडामेंटल अकाउंटिंग 20 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स 20 एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 20, ओवरऑल 40 क्वेश्चंस। यहाँ आपके टोटल क्वेश्चन होने वाले 120, एंड आउट ऑफ दीज 120 अगर आप 65 to 75 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हो गाइज, देन दिस विल बी द कट ऑफ, आपको बेंगलुरु कैंपस इजीली मिल जाएगा। फ्लैगशिप प्रोग्राम की बात करते हैं गाइज, बीबीए in business analytics, finance and economics, finance and marketing analytics, even in international business, marketing, tourism, marketing and supply chain management, strategy and business analytics। यहाँ पेपर पैटर्न काफ़ी सिंपल होने वाला है। इंग्लिश को लेकर 25 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल नॉलेज 20, फंडामेंटल अकाउंटिंग 10 क्वेश्चंस, काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं गाइज यहाँ। रीजनिंग को लेकर 25 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स 20, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 20, 40 क्वेश्चन। सो ओवरऑल यहाँ 120 क्वेश्चन, और यहाँ आपको स्कोर करना है 80 to 90 फॉर बेंगलुरु सेंट्रल कैंपस। यस गाइस, और सबसे बेस्ट कैंपस है बेंगलुरु सेंट्रल कैंपस। बीबीए डिसीजन साइंस के लिए यहाँ थोड़ा सा पेपर पैटर्न में चेंजेस है। इंग्लिश 25, जनरल नॉलेज 20, फंडामेंटल अकाउंटिंग अगेन 10 सिंपल क्वेश्चंस, रीजनिंग को लेकर काफ़ी कम वेटेज दिया गया है यहाँ, ओनली 13 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स 10, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 10, ओवरऑल 20, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चंस, डिजाइन थिंकिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग 10, पैटर्न रिकॉग्निशन 12 क्वेश्चन। सो ओवरऑल यहाँ भी आपके होते हैं 120 क्वेश्चंस, और इसके लिए भाई 60 to 70 गुड अटेम्प्ट्स आपके माने जाएंगे। मेक श्योर गाइज यहाँ नेगेटिव मार्किंग सिस्टम भी है, तो आपको ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखना है। +1 फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड -0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मूविंग फर्दर विल टॉक अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया। एंट्रेंस एग्जाम जो होती है 120 मार्क्स की होती है। वी ऑलरेडी सी कि भाई हमें 75 to 80 के आसपास ऑन एवरेज
करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद गाइज आपके लिए वेन्यू डिसाइड होने वाले हैं फॉर स्किल असेसमेंट टेस्ट, माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। सो ओवरऑल गाइज यहाँ होता क्या है, स्किल असेसमेंट आपको एक A4 साइज की शीट मिल जाएगी, उस शीट पर आपको कोई भी एक टॉपिक के बारे में लिखना है। सो दे विल जज योर राइटिंग एबिलिटी एंड कोहेरेंस। दे आफ्टर 90 सेकंड मिलने वाले हैं आपको माइक्रो प्रेजेंटेशन के लिए, जो कि होता है एक वर्बल प्रेजेंटेशन दैट विल बी टेस्टिंग एबिलिटी टू थिंक ऑन योर फीट एंड कम्युनिकेट आइडियाज क्लियरली, कि भाई आप 90 सेकंड में उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या बोलते हो। आपके सामने पैनल रहेगा, पैनल आपको एक टॉपिक देगा और उस टॉपिक के ऊपर आपको 90 सेकंड बोलना है। दे आफ्टर पर्सनल इंटरव्यू, पैनल लेड इंटरव्यू, जहां आपके एकेडमिक्स की बात होगी, करियर एम्बिशंस के बारे में बात होगी, आपकी जर्नल अवेयरनेस देखी जाएंगी एंड इवन योर पर्सनैलिटी विल बी जज। सो ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया काफ़ी इजी है गाइस। हमें जितनी मेहनत एंट्रेंस टेस्ट को लेकर करनी है, उतनी स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन पार्ट एंड पीआई को लेकर भी करना है, और इन सारे पैरामीटर्स को लेकर आप प्रिपरेशन कर सकते हो एट मैनुआ। अब आगे बात करते हैं गाइस सीट इनटेक को लेकर। सो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ने कहीं भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर सीट मैट्रिक्स को मेंशन नहीं किया है, लेकिन हाँ ओवरऑल 1200 seats are there with respect to the BBA program and approximately 600 to 700 seats are at the central campus alone. So भाई आप सेंट्रल कैंपस को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, दे आफ्टर आपको देना है बानेरघाटा रोड कैंपस, यशवंतपुर कैंपस, इवन द केंजरी कैंपस। उसके बाद आप दिल्ली NCR रीजन को टारगेट कर सकते हो, पुणे लवासा को भी टारगेट कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा होना चाहिए आपका सेंट्रल कैंपस। सो विल टॉक अबाउट द कैंपसेस एज वेल। बैंगलोर केंजरी कैंपस, फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी द Bangalore Central Campus. Thereafter, you can go for the Banerghatta Road Campus, यशवंतपुर, दिल्ली NCR रीजन, ऑल कैंडिडेट्स फ्रॉम द नॉर्थ रीजन। भैया आपको बेस्ट BBA कॉलेज चाहिए, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, देन भाई क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज बेस्ट फॉर यू। पुणे रीजन से आप पुणे लवासा कैंपस, अमेजिंग, काफ़ी अच्छा कैंपस है गाइस। इन डिटेल मैंने वीडियो बना रखी है, यू कैन वॉच दिस ऑन आवर यूट्यूब चैनल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू अदर रेगुलर कॉलेजेस वो ऑफरिंग BBA। फी स्ट्रक्चर इज क्वाइट हाई ओवर ईयर। कर्नाटका को लेकर 2,55,000 per year, other Indian states 2,75,000 per year, NRI candidate 3,54,000 from SAARC nations, Africa, then $5,200 and $5,800 for the foreign nationals. Respective dates are given कि भाई आपको कब फीस कैसे पे करनी है। फॉर्म को लेकर जो फीस है काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है उसका प्राइस होता है 1,800 रुपीज़, लेकिन एडमिशन रजिस्ट्रेशन फी आपकी होती है 8,000 रुपीज, दैट इज नॉन रिफंडेबल। अब यहाँ आपको लगेगा फी स्ट्रक्चर काफ़ी हाई है, यू आर पेइंग ऑलमोस्ट 8 लाख रुपीज फॉर कंप्लीट 3 years। क्या ये वर्थ इट है गाइज? यस गाइज, आप प्लेसमेंट स्टैट्स देखिए यहाँ। टॉप हायरिंग रोल्स, ऑडिट असिस्टेंट 100, एसोसिएट 55, ऑडिट एसोसिएट 47। आप यहाँ देख सकते हो टॉप हायरिंग कंपनी अर्नस्ट एंड यंग्स, डिलॉयट इंडिया, ट्रेविस्टा, जोमैटो, Deloitte USA Consulting, Rippling, Ditto, ICICI Bank, and top paying companies 8,40,000 Trevista, 15,75,000 का हाईएस्ट पैकेज जा चुका है गाइज। ऑन एन एवरेज यहाँ 6 to 7 लाख पर एनम का पैकेज आपको मिल जाएगा, दैट विल बी स्टैंड एज अ मीडियन पैकेज फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। हाईएस्ट पैकेज जहां मैं बात कर रहा हूँ गाइस 15,75,000 ऑफर किया गया है डी शो एंड कंपनी के थ्रू। एक्सेला एडवाइजरी ने ऑफर किया है 14 लाख का पैकेज। सो गाइस यहाँ वर्थ इट है। दीज ऑल आर स्टैट्स विथ रिस्पेक्ट टू द 2024 एंड 25 एकेडमिक ईयर। रिसेंट वन येट टू कम, लेकिन गाइस काफ़ी अच्छे स्टैट्स यहाँ आपको मिलने वाले हैं। 8 लाख रुपीज़ जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो वर्थ इट है, क्योंकि यहाँ मुझे प्लेसमेंट स्टैट्स अमेजिंग लग रहे हैं। एंड गाइस डोंट फॉरगेट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आपका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है with respect to all the parameters. So wanna target Christ University? Let's start preparation with Manua. Join our live classes, classroom coaching, books, mock, GD, VAT, interview and mentorship program. You can also visit our website for all exam updates and notification. Follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.